welcome to all. You are in a physics class and today we are going to study about EMI. What does it mean? That is your electromagnetic induction. Electromagnetic induction means a current is produced due to the change of the magnetic flux or magnetic line of forces. Magnetic line of forces के change होने की वजह से जो current produce होता है पूरे phenomenon को हम क्या कहेंगे? Electromagnetic induction. To write it down, due to the change of magnetic field or magnetic line of forces, the current is induced, which is known as induced current in the circuit, which is known as induced current in the circuit, and the EMF so produced is known as induced current, induced EMF. Due to the change of, that is your magnetic line of forces, the current so produced in a circuit is known as induced current, and the EMF is known as induced EMF. The very first topic in this chapter, that is known as magnetic flux. After magnetic flux, we proceed towards the Faraday's law and the direction of the current. In this chapter, we have to study a lot of things, but today's topic include magnetic flux, and the second topic is your Faraday's law, third is your Lenz law, and the direction of the current, which is concluded in a Lenz law. Now the very first is your magnetic flux. So firstly, what do you mean by magnetic flux? It would be same as that of the electric flux. The total number of magnetic lines that is passing through a surface area is known as magnetic flux. कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास कर रही है किसी सरफेस एरिया से, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स और काउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. नाउ लेट इट बी phi. Phi is equal to, it depends upon integral of B dot A vector, closed integral of B dot A vector. Let it be suppose कि हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? एक सरफेस ले लेते हैं. इस सरफेस को हमने इस तरीके से कंक्लूड किया. इस सरफेस में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इस तरीके से पास करें. ठीक है, ये सरफेस किस तरीके से है? इस सरफेस को हम सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी दिस इज योर सरफेस. ये इस तरीके से सरफेस है. इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से ऐसे पास करें. Magnetic line of forces. The area vector of this surface would be this one. The area vector of this one surface is towards this side. Let it be the area vector of this surface would be this one, n cap, and the magnetic line of forces which is passing through it, this would be the magnetic line of forces, B vector, magnetic field. Now the angle between B and N is your area vector, is your 0 degree in that case. We know that dot product of the two vector is your scalar quantity. Therefore, phi is your scalar quantity here. Phi is your scalar quantity and known as magnetic flux. इसको हम क्या कहेंगे? Magnetic flux. Now B dot dA, this one is equal to integral of BA cos theta. Therefore, phi is equal to BA cos theta. You got this point? Phi is equals to BA cos theta, where theta is the angle between B and A. Phi is known as magnetic flux, B is your magnetic field, A is your area vector, and theta is the angle between B and A. Here theta is equals to 0 degree because the angle between B and the area vector is here 0 degree. If we consider this one would be the area vector, the angle would be 180 degree. If we suppose this would be the area, and area vector would be this one, n cap. Let it be the magnetic line of forces which is crossing through this in this B vector. Then angle इसमें क्या हो जाएगा? Angle between
that is your area vector, and the magnetic field is your theta. In that case, the phi would be BA cos theta. In that case, magnetic flux would be BA cos 0 degree. Cos 0 degree is equals to 1. Therefore, phi is equals to BA cos theta or BA when the angle is here 0 degree. Let us proceed to the next topic, that is here how we can deduct phi is here changing. Phi जो है हमें यहाँ से बहुत अच्छे से पता चल रहा है. What do you mean by EMI? EMI means when the magnetic line of force is changing, what is producing? That is here electric current, induced current. If the phi is main purpose is here phi, because phi is here number of line passing through the surface area. तो phi की चेंज करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? That is your current. अब phi हम कब चेंज कर सकते हैं? When we change B, that is your magnetic field. When we change area, and when we change theta. Thus, three cases arises how we can induce the current in a circuit, that is by changing B, A or theta. Let us proceed next. At this point, we know that phi is equals to BA cos theta, and here phi is your scalar quantity. We know that phi is your scalar quantity, and it depends upon B, A, and theta. It depends upon three things. Now we know that it's a scalar quantity, and the SI unit of phi is your Weber. The SI unit is your Weber. And in case of magnetic field, we very well know that if phi is equals to BA cos theta, thus we can say that Weber, phi is your Weber, and B is your magnetic field having unit Tesla. Having unit Tesla, and your area has the unit meter square, and theta is unitless. Thus, S, that is Weber, is equal to Tesla meter square. तो कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि टेस्ला इज इक्वल टू ऑप्शन हो सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर एंड मैनी अदर्स. तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो टेस्ला इज इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर. नाउ प्रोसीड टू द केसेस. देयर आर 3 cases. द केस नंबर 1, हम सपोज कर लेते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया. मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हम कहीं पे क्रॉस रिप्रेजेंट करें, हम क्रॉस लगा के उसको सर्कल में पुट कर देते हैं, देन इट शो द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड तो होगी बट किस डायरेक्शन में? अगर हमें क्रॉस दिख रहा है देन इट वुड बी इनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? इनवर्ड. अगर हम कभी डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स. इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड. अगर केस 1 में मैं मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर रही हूँ और वो मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस से, तो इट विल शो अस दैट मैग्नेटिक फील्ड इज योर इनवर्ड. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के बाद हमने इसमें कोई एक कॉइल लेट इट बी दिस वन इज योर कॉइल. अब हमें पहले तो पता ही नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है. अचानक से क्या हुआ? लेट इट बी जो भी सोर्स होगा इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का, वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है फॉर द सम टाइम वो जो है खत्म हो गया. मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, वी आर सपोजिंग जस्ट कि मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी किसी टॉर्च से हमने लाइट प्रोड्यूस की है और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट की. लेट इट बी लाइट बंद हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कुछ देर के लिए खत्म हो गई. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से गई, हमें पता चला कि इस ये जो लूप है, इस लूप में क्या प्रोड्यूस होने लगी? करंट. इट मीन्स कि अब फिर क्या हो गया? थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती और मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर से चली गई, आ गई, और उस टाइम पे क्या
मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसमें करंट आ रही है, मींस करंट इज नॉट इक्वल टू 0. लेट इट बी हियर द करंट इज हियर I. तो करंट I किसकी वजह से हो रही है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. लेट इट बी वी आर सपोजिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? करंट. ये मैं अपने से बना रही हूँ. ये क्या है? दिस वन इज अ रूल. साइंटिस्ट जब ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? दैट वुड बी द करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, करंट यहाँ पे प्रोड्यूस. I is not equal to 0. We are supposing केस नंबर सेकेंड. केस सेकेंड में हम फिर से मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं. We are considering the magnetic field. और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगेन एक लूप रख रहे हैं. अब हमने क्या किया? We make this magnetic field constant. हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं, मीन्स B is your constant. इस केस में B constant है. अगर B constant है तो उस टाइम में हमने देखा कि हम इसके एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. हम खुद से क्या कर रहे हैं? ये जो एरिया है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं. उस टाइम पे भी हम देख रहे हैं कि एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से भी इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, मींस I is not equal to 0. If the area changes also leads the current. तो एरिया के चेंज होने की वजह से भी क्या प्रोड्यूस हुई? करंट. नाउ वी प्रोसीड टू द केस नंबर थर्ड. अब देखो केस थर्ड में क्या है? अगेन वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड. हमने दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया और इसमें लूप को रख दिया. वी कंसीडर लूप इन इट. ये आप लूप रख. अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B इज योर कांस्टेंट. एज वेल एज हमने एरिया भी इसमें क्या कर दिया? कांस्टेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट. एरिया भी उसका क्या है? कांस्टेंट. हमने उस टाइम पे क्या किया? इसको रोटेट करवाया. तो जैसे ही हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ट. इस मैग्नेटिक लूप को हमने ऐसे रोटेट, मींस ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से और हमने किसी चीज को ऐसे इसमें रोटेट किया. तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमारा लूप है ये दोनों किस प्लेन में आ गए? सेम प्लेन में. हमने इसमें कंसीडर किया कि I is equal to 0. इस केस में करंट प्रोड्यूस नहीं होता. बट सेम लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और इसको किस तरीके से रखें कि हम इसको ऐसे रोटेट करें इन दिस. अब हमने इसको ऐसे रोटेट किया पूरे लूप को. पहले हम कैसे रोटेट कर रहे थे? ऐसे. अब हमने इसको कैसे रोटेट करना स्टार्ट किया? इस तरीके से. जब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो हमें पता चला here the I is not equal to 0. Again the current is produced. तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? हम यहाँ से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि phi means magnetic flux, magnetic line of forces. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के चेंज होने से ही करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट. और वो कब चेंज होगा? जब B चेंज होगा. B means when the magnetic field is changing, what is produced? That is your current, induced current. When A is your changing, when area is your changing, जब हमने एरिया को क्या किया? श्रिंक कर दो या फिर इसको बढ़ा दो. तो उस टाइम पे भी क्या होगा? What is producing? That is your magnetic flux is your changing, phi is your changing, thus the current is producing. And the third case when theta is your changing. थीटा कब चेंज होगा? जब हमारा क्या है? इस तरीके से रोटेट करेगा. जब यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा. यहाँ पे हमारा एंगल ही नहीं बन रहा. जब एंगल ही नहीं बन रहा मींस हमारे पास थीटा कितना आएगा उस केस में? 90 डिग्री. एंड द cos 90 डिग्री इज your 0. तो इफ इट इज 0 then phi is your 0 because phi is your BA cos 90 degree. Cos 90 is your 0 then phi is your 0. If phi is 0, I is your 0 because phi के चेंज करने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रहा है?
because of the change of B, A and theta. These are the three cases in this one, and the very important is here Weber is equals to Tesla meter square. Then we proceed towards the direction of the current. डायरेक्शन करंट की कैसे हम यहाँ पे लेंगे, और डायरेक्शन में से एक क्वेश्चन बोर्ड सीबीएसई में हमेशा सीबीएसई फिजिक्स में हमेशा डायरेक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मेनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। नाउ अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन से पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, दैट इज योर फैराडेज लॉ। फैराडे ने कुछ लॉ दिए, फैराडेज लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था दैट इज योर फर्स्ट लॉ फैराडे, जो कि हम थोड़ा सा कंक्लूड कर ही चुके हैं, केसेस में हमने बहुत पढ़ लिया है, तो हमें बहुत अच्छे से पता चल ही जाएगा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में देखिए क्या आ जाएगा, हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडर कॉइल, और उसको अटैच कर देते हैं विद अ गैल्वेनोमीटर। अब हमने यहाँ से क्या किया है, एक बार मैग्नेट को यहाँ पे रखते हैं, नॉर्थ एंड देन साउथ। अब हमने एज्यूम किया कि जब हमने बार मैग्नेट को बहुत ही अवे रखा हुआ है, एट इन्फिनाइट पे रख लेते हैं, बार मैग्नेट इज एट इंफिनिटी, उस पे हमने सपोज किया कि करंट इस कॉइल में, इस सर्किट में करंट कितनी आती है, दैट इज इक्वल्स टू 0। केस 1, ये साइंटिस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि जब हमने बार मैग्नेट को इंफिनिटी पे रखा उस टाइम पे करंट कितनी आ रही है, 0। सेकेंड केस में उन्होंने क्या कर दिया, बार मैग्नेट को हमने अवे रखा है, बार मैग्नेट इज योर अवे, जैसे सपोज करो यहाँ पे रख दिया है, तो कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास करेंगे, कुछ तो इसमें से पास करेंगे ही। हम सपोज कर लेते हैं 20 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग। उस टाइम में हमने देखा अगेन करंट इज इक्वल्स टू 0। अब थर्ड केस में हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द कॉइल। इफ द बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, अगर बार मैग्नेट को हमने कॉइल की तरफ मूव किया, हमने देखा उस टाइम पे कुछ करंट आता है, I is not equal to 0, और गैल्वेनोमीटर जो है उस टाइम पे एक साइड पे, लेट इट बी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। फोर्थ केस में उसने क्या किया, अगेन बार मैग्नेट को उसने स्टिल कर दिया, स्टेशनरी रखा उसने उसको नियर द कॉइल। बार मैग्नेट को भी स्टेशनरी रखा है नियर द कॉइल, तो हमने देखा कि उस टाइम में भी करंट जो है वो कितनी है, 0। लास्ट केस, फिफ्थ में क्या है, इफ द बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। अब बार मैग्नेट कहाँ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल। जैसे कि इसको हमने कॉइल से दूर मूव किया, वी सी दैट I is again not equal to 0. There would be some current, and the galvanometer would produce the deflection towards right side. ठीक है, वन साइड पहले लेफ्ट उसने प्रोड्यूस कर दी, देन राइट प्रोड्यूस कर दी। ये लेफ्ट राइट बाद में चेंज भी हो सकते हैं, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे कि ये क्या चीज़ है। फर्स्टली हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जब बार मैग्नेट इंफिनिटी पे है, देयर वुड बी नो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देन I would be 0. When the bar magnet is away and it is your stationary, at that time again current is equals to 0. जब वो अवे है, वो स्टेशनरी है, उस टाइम पे सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी पास कर रही है, लेट इट बी 20। अब हमने बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, मींस इसको यहाँ से उठा के हम ऐसे मूव कर रहे हैं। जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इसमें से क्रॉस करेंगी वो क्या करती जाएंगी, इंक्रीज, लेट इट बी 20। जब यहाँ पहुंचेगा 30, 40, 50, 60, 100 ऐसे होगा, ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। यू वेरी वेल नो दैट ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस व्हाट इज प्रोड्यूसिंग, दैट इज करंट। इट मींस I is not equal to 0 in that case. Again, when we put the bar magnet stationary near the coil, हमने बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया नियर द कॉइल। सपोज कर लेते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 99। अगर अभी 99 यहाँ
फैराडे ने ये कंक्लूड किया कि ड्यू टू द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस व्हाट इज प्रोड्यूसिंग दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। उस टाइम पे सर्किट में क्या प्रोड्यूस होती है? इंड्यूस्ड करंट। सेम फैराडे का फिर सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे सेकंड लॉ क्या देते हैं कि अब कितनी इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने क्या कहा, फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, यू कैन राइट इट डाउन, फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट the magnitude of the induced EMF is equal to the magnitude of induced EMF. Let it be, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux. It is equal to the rate of change of magnetic flux, which is your phi. रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या है? दैट इज योर डी फाई अपॉन डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मींस आप इसको कितनी तेजी से, कितने रेट से आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हो, उतनी ही आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी? दैट इज योर ईएमएफ एंड दैट ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे इसकी सम डायरेक्शन भी है, तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है? डी फाई अपॉन dt, negative of, so E is your negative of d phi upon dt. What does this negative represent? This negative was given according to the Lenz law. ये Lenz law के according जो है दिया गया, जो कि बिल्कुल न्यू है आपके लिए Lenz law। तो Lenz law जो है वो हमें किस चीज की डायरेक्शन देता है? It gives us the direction of the induced current. यहाँ पे लिखो, here negative sign gives us the direction of induced current. Negative sign indicates the direction of induced current. Now let's proceed towards the next. Write it down. Write it down. Okay. Now proceed to the next. That is known as Lenz law. Second last topic, Lenz law. After that we will proceed to some numerical type direction. How to find the direction. Next is your Lenz law. देखो इसमें क्या आ जाएगा? Lenz gives us the direction of the induced current. तो write it down. Lenz law gives the direction of the induced current which oppose the cause of producing it. Induced current को जो produce कर रहा है उसको ये हमेशा इंड्यूस करंट क्या करेगी? अपोज करेगी। अब इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग बाय चेंजिंग द फ्लक्स। तो हमारा जो लेंज लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है वो अपने ही काज को क्या करेगी? अपोज करेगी। हम इसको कैसे एज्यूम करेंगे, कैसे पढ़ सकते हैं हम इसको? सपोज अगेन हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं, उस कॉइल को हम अटैच कर देते हैं गलवानी। अब हमने क्या किया, हम यहाँ से बार मैग्नेट को नीचे लेके आते हैं। वी वेरी वेल नो दैट कि बार मैग्नेट को मूव करने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? इंड्यूस करंट। अब देखो जब हम इसको नीचे ला रहे हैं, व्हाट इज योर चेंजिंग? दैट इज योर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी। अब उस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी कि वो अपोज करे इसके मोशन। इसको अगर अपोज करना है तो मैग्नेट के सामने हम अगर साउथ पोल हमारे पास आ रहा है तो हमें आपको क्या रखना पड़ेगा? साउथ पोल। साउथ और साउथ आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है? साउथ। और अगर हम साउथ को ध्यान से देखें तो इसकी इस लाइन को, साउथ को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ऐसे
हम मैकेनिकल एनर्जी से उसको नीचे लाएंगे टुवर्ड्स द कॉइल, और वो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करवाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का चलना यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो वी वेरी वेल नो दैट आवर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम वे अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब हम बार मैग्नेट को अगर यहाँ से अवे मूव करें, सपोज करो बार मैग्नेट इज टुवर्ड्स द कॉइल, इज एंड नियर द कॉइल, अब हम इसको दूर करना चाहते हैं। जब हम इसको फिर से दूर करेंगे तो हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से अब ये करंट जो है ये इस तरीके से प्रोड्यूस करेगी कि ये यहाँ पे चेंज को अपोज कर सके। तो चेंज क्या है, बार मैग्नेट का दूर जाना, तो साउथ पोल को अगर हमें दूर नहीं जाने देना है तो हम यहाँ पे क्या डेवलप करेंगे, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को डेवलप करने का मतलब है इस तरीके से, दिस इज हियर एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस जब बार मैग्नेट अपोजिट जाएगा तो हम इसमें कैसे करंट अपने आप प्रोड्यूस होगी, दैट इज हियर एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम उसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, कौन सी फोर्स लगेगी, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होगी, मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोर्ड में क्वेश्चन मैक्सिमम याद होता है, बट डू यू मीन बाय लेंज लॉ एंड शो दैट इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिलता है इसमें से। इसी के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या आ जाता है, दैट वन इज योर डायरेक्शन। लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेनली 2 मार्क्स में आपको सिंपल यही क्वेश्चन मिलने को मिलता है, देखने को मिल जाएगा, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, वी सपोज that is your uniform magnetic field, the direction is your inward, direction कैसी है, inward, this will be the magnetic, this one is your uniform magnetic field which is your inward। हम इसमें coil place करते हैं, placing the coil like that। अब क्वेश्चन में आपको किस तरीके से दिया होगा, तो आपको कहेंगे if B is your decreasing, suppose if the magnetic field is your decreasing, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दैट टू, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो उस टाइम आपको ये सबसे पहले सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से ऑब्वियसली फाई चेंज करेगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज हियर बी ए कॉस थीटा, वी नो इट, हमें ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि फाई जो है वो बी ए कॉस थीटा है। अब बी के चेंज करने की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगी, बट डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है इनवर्ड। अब हमें लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पता चल चुका है, जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस करंट क्या करती है, इट विल अपोज द कास, वो कास को अपोज करती है। तो इसमें कास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, जो करंट प्रोड्यूस होगी वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगी। तो हम देखें यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और वो डिक्रीज हो रही है, जो करंट है वो करंट भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगी, इनवर्ड, ताकि वो डिक्रीज ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड बन रही है, दिस वन विल बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज हियर इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड बनानी है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो in that case the direction of the current is your clockwise, so direction of the current is your clockwise, this would be the clockwise। इसी का सेकंड केस ले लेते हैं, we suppose the magnetic field, again magnetic field which is your inward, and we suppose a coil in that, and the magnetic field in that case is your increasing। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हम सपोज कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो लेंज लॉ के
अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या करेगी, उसको डिक्रीज कराएगी। तो डिक्रीज करने का तरीका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो इंड्यूस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो आउटवर्ड बन जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड बनाने का तरीका कैसा हुआ, दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज योर आउटवर्ड। और करंट हमारी कैसे आ गई, इस तरीके से, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमारी इस केस में कैसे आ जाएगी, दिस वन इज योर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी करंट इस केस में कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्वेश्चन में वहां आंसर क्या करना है, यू हैव टू आंसर ओनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इनवर्ड एंड द कॉइल इज प्लेसिंग इन बिटवीन दैट, then what would be the direction of the current, and you have to write clockwise anti clockwise according to the question के अकॉर्डिंग आप clockwise और anti clockwise लिखोगे। इसी में कुछ और न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। लेट इट बी, एक बार ये क्वेश्चन भी आया है, हमने कॉइल यहाँ पे कंसीडर कर ली, लेट इट बी दिस वन इज योर कॉइल एंड दिस इज योर वायर इन विच करंट इज प्रोड्यूस्ड। एक ये वायर है जिसमें आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही है, करंट। बताओ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो प्रोड्यूस होगी, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्पोज करो, सोचो इसको थोड़ा, इसमें कैसे प्रोड्यूस होगी। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है, द करंट इज दिस वन, दिस वर्ड, हमारे पास करंट इस तरफ आ रही है। करंट अगर इस तरफ आ रही है तो हम इस हाथ को कैसे रख सकते हैं, अगर आई इस तरफ है तो हमारे पास ये हम हाथ ऐसे रख सकते हैं इस तरीके से। तो आई इस तरफ है तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगी, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कैसे आ रही है, आउटवर्ड। आउटवर्ड मींस कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट। बट मैग्नेटिक फील्ड जो उसने बनानी है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है, ताकि वो इसको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। तो डिक्रीज करने के हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनानी पड़ेगी, इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनवर्ड बनेगा, इनवर्ड, और करंट कैसे आ जाएगी, दिस वन साइड। तो ये हमारे पास बनेगी डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड इन दिस केस ही हैज टू राइट आई इज योर इंक्रीजिंग, करंट इज योर इंक्रीजिंग इन अ वायर। अगर इसी को वो चेंज कर देता है और ऐसे लिख लेता है, दिस वुड बी द आई इन दिस डायरेक्शन एंड दिस वन इज योर डिक्रीजिंग। और ये करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, दिस वन वुड बी द कॉइल। अब करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से कैसे आ गई, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मींस डॉट, बट करंट क्या कर रही है, डिक्रीज। इट मींस हमें इसको क्या करना है, इंक्रीज। इंक्रीज के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करंट की होगी वो भी कैसी होनी चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ बनाने के लिए इज दिस वन साइड, तो ऐसे क्या आ जाएगा, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो उस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या होगी, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। इन दैट केस इट वुड बी द क्लॉकवाइज एंड इन दैट केस इट वुड बी द एंटी क्लॉकवाइज। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दैट केस। एक एरिया पे क्वेश्चन लिखते हैं, एरिया पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया कैसे चेंज होगा। हम सपोज कर लेते हैं दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन आगे हमें करना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एक्सप्रेशन भी बोर्ड में आ जाता है, इसका एक्सप्रेशन भी आया है बोर्ड में बहुत बार। तो फिलहाल हम डायरेक्शन देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टर रखी है, कॉइल रखी है इस तरीके से कि वो मूवेबल, दिस वुड बी द फ्रेम। अब हमने यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं P, Q, R एंड दिस वन इज योर S। लेट अस सपोज जो फ्रेम है इसमें हमने कंसीडर किया लेंथ वुड बी, इसकी लेंथ ले लेते हैं L एंड दिस वुड बी योर X, जिसकी अभी वैसे जरूरत है नहीं L और X की। जब हम इस पे एक्सप्रेशन करेंगे तब हम L और X ले सकते हैं। अभी आप इस L और X को निगलेक्ट करें तो हमारे पास ये क्या है, दिस वुड बी द मूवेबल। ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अब इसके डायरेक्शन को देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर ये इस तरफ मूव करता है, लेट इट बी द वेलोसिटी इज टुवर्ड्स दिस साइड।
that is your Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule में आपने तीनों फिंगर्स, ये 10th में आप पढ़ के आ रहे हैं, तीनों फिंगर्स को आप कैसे रखोगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें आपका थंब विल रिप्रेजेंट मोशन ऑफ द कंडक्टर. थंब विल रिप्रेजेंट motion of conductor. And your index finger will represent that is your field. Index finger will represent magnetic field. इसको मैं आपको के लिए magnetic field is denoted by B. बट इसको मैं फिलहाल फील्ड सिर्फ लिखूंगी, that is your F. शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए थंब, इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडल फिंगर. अब मिडल फिंगर जो है इट विल रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट, जिसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट. इसको मैं अपने लिए फिलहाल C लिखूंगी. करंट इज डिनोटेड बाय I. शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए C लिख रही हूँ एंड योर मोशन इज योर M. तो हम इसको ऐसे लर्न रख सकते हैं, मोशन, फील्ड, करंट, जिसमें मोशन क्या है? मदर, फादर, चिल्ड्रन. मोशन, फील्ड एंड योर करंट. अब इसी चीज को यहाँ पे देखिए. अब क्वेश्चन मोड में देखो कैसे आया है. ये एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आया है, नीट के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया था कि इफ द फिगर इज गिवन टू यू एट दैट टाइम, फिगर आपको गिवन थी, वेलोसिटी इस तरफ बनाई है, वेलोसिटी इस तरफ भी हो सकती है, क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं वो. वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जब इस पे करंट चलती है उस टाइम पे Q की पोलैरिटी क्या होगी? Q की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वी कांट से एनीथिंग, और नन ऑफ दिस, कुछ भी हो सकता है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम Q की पोलैरिटी कैसे बता पाएंगे, जब तक हमें डायरेक्शन करंट की बतानी पड़ेगी. अब हमें यहाँ पे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ट. मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है? दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. तो हम अपने फिंगर्स का यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज योर इनवर्ट. मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्ट. मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है? टुवर्ड्स दिस साइड. आप इसको देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज योर इनवर्ट. मोशन ऑफ द कंडक्टर इज टुवर्ड्स दिस साइड and the current is your downward. तो इस केस में हमारे पास जो करंट आ जाएगी वो कैसी होगी? The current in that case is your ground. That is your current. तो हमें बहुत अच्छे से पता चला कि if this would be the magnetic field which is your inward and this would be the direction of the, that is your conductor, motion of the conductor is this one. अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी यहाँ ना होकर यहाँ बना दी जाए तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है, देन करंट कैसे हो जाएगी? अपवर्ड फ्रॉम R to Q. बट इन दैट केस द वेलोसिटी इज योर दिस वन साइड. ये चेंज नहीं होना चाहिए बच्चा. ये हमेशा, चाहे आप हाथ को जैसे मर्जी हिलाओ, ये हमेशा आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने चाहिए. तो ये आ गई दिस वन साइड, देन द करंट इज योर डाउनवर्ड. तो करंट डाउनवर्ड आ गया तो क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है. अब बच्चे मैक्सिमम द करंट इज मूविंग इन दिस वे, करंट ऐसे चल रहा है तो इस तरीके से. बट बच्चे यहाँ फिर मिस्टेक करते हैं, वो Q को कहेंगे पॉजिटिव और R को कहेंगे नेगेटिव. व्हाई इट इज सो? बिकॉज सबने पढ़ा है द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. हम सबको पता है द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सर्किट. ड्रॉ करते हैं, लेट इट बी दिस वन इज योर सर्किट, पॉजिटिव नेगेटिव. अब हमें छोटे होते से पढ़ाया है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. मींस करंट कैसे मूव करेगी? फ्रॉम दिस वर्ड टू दिस. तो बच्चे एक मिनट में आंसर देते हैं कि यहाँ पे Q क्या है? पॉजिटिव. बिकॉज करंट पॉजिटिव से कहाँ जाएगी? नेगेटिव. मैम Q पॉजिटिव है, R नेगेटिव है. बट ऐसा नहीं है. आपको पता है इस सर्किट में करंट का सोर्स क्या है? दैट इज द बैटरी. और सोर्स में करंट कहाँ से कहाँ चलती है? फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव.
मूवेबल कंडक्टर यही मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सोर्स है, तो इट मींस कि Q जो है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव, और R क्या होगा, दैट वन विल बी द पॉजिटिव। द करंट फ्लोज फ्रॉम Q टू द R, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। नेगेटिव बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ द करंट, ये सोर्स है इस टाइम पे करंट का। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम यही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का मिल ही जाते हैं हर साल। दैट्स इट फॉर टुडे।